Speaking gifts. This is the third category of the spiritual gifts. It includes speaking in tongues. Second one is interpretation of the tongues, prophecy. God uses these gifts to audibly communicate with the people. ते हुए उपहार यह आध्यात्मिक उपहारों की तीसरी श्रेणी है। इसमें शामिल है 1. जीव में बोलना, 2. भाषाओं की व्याख्या और 3. भविष्यवाणी। परमेश्वर इन उपहारों का उपयोग हमारे साथ श्रव्य रूप से संवाद करने के लिए करता है। Speaking in tongue, it is a gift that is assigned to the unbelievers. A person with this gift will speak in an unknown language to them and get the attention of everyone nearby. If this gift is used in a public setting, there must be an interpreter. 1. जुबान में बोलना। यह एक उपहार है जो अविश्वासियों के लिए एक संकेत है। इस उपहार के साथ एक व्यक्ति अलौकिक रूप से एक अज्ञात भाषा में बात करेगा और आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। यदि इस उपहार का उपयोग सार्वजनिक सेटिंग में किया जाता है। When the disciples were get baptized by the Holy Spirit at the day of Pentecost, the scripture records like this, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. So the first sign of baptism was speaking in other tongues. See how this attracted people. Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven, and when the sound occurred, the crowd came together and were bewildered because each one of them was hearing them speak in his own language. They were amazed and astonished, saying, "Why are not all these who are all speaking Galileans? And how it is that we each hear them in our own language to which we were born? We hear them in our own tongue speaking of the mighty deeds of God." जब पेंटेकोस्त के दिन चेलों ने पहली बार पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया, तो पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जैसे आत्मा उन्हें बोलने दे रही थी। सो बपतिस्मे का पहला चिन्ह अन्य भाषा में बोलना था। देखें कि इसने लोगों को कैसे आकर्षित किया। यरूशलेम में रहने वाले यहूदी थे और स्वर्ग के नीचे सब जातियों के लोगों को भक्ति देते थे, और जब यह शब्द हुआ तब भीड़ इकट्ठी हो गई और घबरा गई, क्योंकि उनमें से हर एक अपनी अपनी भाषा में उनकी बातें सुन रहा था। वे चकित हुए और चकित होकर कहने लगे, क्यों ये सब गलीली बोलने वाले नहीं हैं? और यह कैसे है कि हम में से प्रत्येक अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं जिसमें हम पैदा हुए थे। हम उन्हें अपनी जीभ में भगवान के शक्तिशाली कार्यों के बारे में बोलते हुए सुनते हैं। Do you know, through this gift of tongues only, the first church was formed with 3,000 believers. Maybe by hearing Peter's first sermon, the people might have been pierced in heart and repented. But the hooking incident was through the gift of speaking in tongues. क्या आप जानते हैं, अन्य भाषाओं के इस उपहार के माध्यम से 3,000 विश्वासियों के साथ केवल पहला चर्च बनाया गया था। हो सकता है पतरस के पहले धर्मोपदेश के द्वारा उनके हृदय में छेद किया गया और उन्होंने पश्चाताप किया, लेकिन जुए की घटना अन्य भाषा में बोलने के उपहार के माध्यम से थी। Paul explained about this gift. For one who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands but in his spirit he speaks mysteries. So he advised all the people who use this gift should use it in secret, unless and otherwise there is an interpreter. So don't encourage any people to speak in the tongues in the church or in the public without an interpreter, which may lead to confusion, as Paul said. Anyway, use this gift as God leads. So, how that helped to form the first church? Same way will be useful for the expansion of the God's ministry. पौल ने इस उपहार के बारे में बताया, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि कोई नहीं समझता, परंतु अपनी आत्मा से भेदों की बातें करता है।
इसलिए उसने सभी लोगों को इस उपहार के साथ गुप्त रूप से इसका उपयोग करने की सलाह दी, जब तक कि कोई दुभाषिया न हो। लोगों को कलीसिया में या जनता में दुभाषिये के बिना अन्य भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित न करें, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। जैसा कि पौलुस ने कहा था, किसी भी तरह से इस उपहार का उपयोग भगवान की अगुवाई के रूप में करें, तो जिस तरह से पहली चर्च बनाने में मदद मिली, उसी तरह भगवान के मंत्रालय के विस्तार के लिए उपयोगी होगा। Interpretation of the tongues. A person with this gift have a supernatural ability to understand and interpret the message given in tongues to others. The result is that God is glorified and the church is edified. Paul also stressed in his letter to Corinthian church and advised the believers they should not use the gift of speaking in tongues without an interpreter. When the tongues and interpretation go hand in hand, that will be useful to the church. So he encouraged the people, therefore let one who speaks in tongue pray that he may interpret. If anyone speaks in tongues, it should be by two or at the most three, and each in turn, and one must interpret. But if there is no interpreter, he must keep silent in the church and let him speak to himself and to God. दो भाषाओं की व्याख्या इस उपहार वाले व्यक्ति में अन्य भाषाओं में दिए गए संदेश को समझने और समझाने की अलौकिक क्षमता होती है। इसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर की महिमा होती है और कलीसिया का उत्थान होता है। पौल ने कुरिन्थियन चर्च को लिखे अपने पत्र में भी जोर दिया और विश्वासियों को सलाह दी कि उन्हें बिना किसी व्याख्या के उपहार के जीभ में बोलने के उपहार का उपयोग नहीं करना चाहिए, जबकि जीभ और व्याख्या साथ साथ चलती है जो चर्च के लिए उपयोगी होगी। इसलिए वो लोगों को प्रोत्साहित करता है। इसलिए जो अन्य भाषा में बोलता है वो प्रार्थना करे कि वो व्याख्या करे। यदि कोई अन्य भाषा में बोलता है तो वो 2 या 3 से अधिक हो और एक को व्याख्या करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई दुभाषिया नहीं है तो उसे चाहिए कलीसिया में चुप रहो और वो आपके और परमेश्वर से बातें करे। Prophecy. People with this gift help the church to understand the heart and desires of God and urge the church to wholeheartedly pursue God and holiness. They tell the future as much as they build up, encourage and redirect the church body. They are called to deliver the message as God directs to the church public or to any individual. Paul encourages people to seek prophecy because he said, one who prophesies speak to men for edification and exhortation and consolation. Paul explained how prophecy works. But if all prophecy an unbeliever or an ungifted man enters, he is convicted by all, he is called to account by all, the secrets of all his heart are disclosed, and so he will fall on his face and worship God, declaring that God is certainly among you. भविष्यवाणी। इस उपहार वाले लोग कलीसिया को परमेश्वर के हृदय और इच्छाओं को समझने में मदद करते हैं और कलीसिया से पूरे दिल से परमेश्वर और पवित्रता का अनुसरण करने का आग्रह करते हैं। वे भविष्य को उतना ही बताते हैं जितना वे प्रोत्साहित करते हैं और चर्च के शरीर को पुनर्निर्देशित करते हैं। उन्हें संदेश को वितरित करने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि भगवान चर्च, सार्वजनिक या किसी भी व्यक्ति को निर्देश देते हैं। पौल लोगों को भविष्यवाणी की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उसने कहा, जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और सांत्वना के लिए बातें करता है। पौल ने समझाया कि भविष्यवाणी कैसे काम करती है, लेकिन अगर सभी भविष्यवाणी और अनगिफ्टेड या अविश्वासी प्रवेश करते हैं तो वह सभी के द्वारा दोषी ठहराया जाता है, उसे सभी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसके दिल के रहस्यों का खुलासा किया जाता है और इसलिए वह उसके चेहरे पर गिर जाएगा और पूजा करेगा ईश्वर, यह घोषणा करते हुए कि ईश्वर निश्चित रूप से आपके बीच है। He told to follow an order in church, let 2 or 3 prophets speak and let others pass judgment.
You can all prophesy one by one so that all may learn and all may be exhorted. And the spirit of prophets are subjected to prophets. उसने जज में एक आदेश का पालन करने के लिए कहा, 2 या 3 भविष्यद्वक्ताओं को बोलने दे और दूसरों को निर्णय लेने दे। आप सभी एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हैं ताकि सभी सीख सके और सभी को प्रोत्साहित किया जा सके और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के अधीन हो। Prophets are called to declare God's judgment. Their work is to say what God said. It is sin to add or remove anything that the God asked them to declare. परमेश्वर के न्याय की घोषणा करने के लिए भविष्यवक्ताओं को बुलाया जाता है। उनका काम यही कहना है कि भगवान ने क्या कहा। जो कुछ भी होड ने उन्हें देने के लिए कहा था, उसे जोड़ना या हटाना पाप है। So in conclusion, under speaking gifts, we have the first one is speaking in tongues, second one is interpretation of tongues, and third is prophecy. God uses these gifts to communicate with and guide the church. Most of the gifts are to help the fellow believers, whereas speaking in tongues helps the believer to pour out his mind to God in secret, get baptized, receive the gifts, and help to build God's kingdom. May God bless you till we meet again. तो अंत में स्पीकिंग गिफ्ट्स के तहत हमारे पास एक भाषा में बोलना, 2 भाषाओं की व्याख्या और 3 भविष्यवाणी। परमेश्वर इन उपहारों का उपयोग कलीसिया में संचार और मार्गदर्शन करने के लिए करता है। अधिकांश उपहार साथी विश्वासियों की मदद करने के लिए है, जबकि अन्य भाषा में बोलने से विश्वासियों को अपने मन को गुप्त रूप से परमेश्वर के सामने उंडेलने में मदद मिलती है। बपतिस्मा लें, उपहार प्राप्त करें और परमेश्वर के राज्य के निर्माण में मदद करें। भगवान आपको तब तक आशीर्वाद दे जब तक हम फिर से न मिले।